उसको परवाह नहीं आपकी बेटी का बर्थडे या बेटे का बर्थडे। The shopkeeper does not bother if it's your son's birthday or your daughter's कहता birthday. कीमत तो देनी पड़ेगी। He says you have to pay the price. जब आपने कीमत दिया, When you paid the price, आपको वो चीज मिली। you got it. अब जिससे आपको प्रेम है, आप उसको वो तोहफा देते हैं। Now whoever you love, you give them that thing as a gift. उद्धार मुफ्त हमारे लिए है, Salvation is free for us, और परमेश्वर को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। but God had to pay a very big price for it. उसके लिए मुफ्त नहीं था। It was not free for him. आमीन। तैयार हैं आप वचन के लिए जो प्रभु, अभी तो मैं केवल बह रहा था, अब थोड़ा वचन देते हैं जो प्रभु ने मुझे दिया 2026 के लिए, जो भविष्यवाणी का वचन है, जो प्रोफेटिक वर्ड है। Are you ready for the word that the Father has given to me for 2026, the prophetic word for this year? आमीन। यानी कई लोग पीछे खड़े हैं, अगर आपको जगह मिले तो बैठ जाना कहीं पे, बस किसी की गोदी में मत बैठना। Find a place you can sit somewhere. इसीलिए कभी भी इस बात को मत भूलना कि परमेश्वर आपको कितना कीमती देखता है। That's why never forget how precious God sees you. Yeah, quickly settle down, then we'll go to the word. जल्दी से बैठ जाएं, फिर हम चले जाएंगे। जब मैं आज परमेश्वर से मैं वचन मांग रहा था, When I was asking, प्रभु ने मुझे 7 चीजें बताई जो इस साल हमारे लिए हैं, इस घर के लिए। मैं बाकियों के लिए तो नहीं जानता, जो वो मुझे मेरे लिए इस घर के लिए बोलता है वही मैं आपके साथ बोलता हूं, और आज तक उसका वचन जमीन पर खाली नहीं गिरा है। when I was asking the Lord for the word for this year, He has given me these 7 things, and these things are for this house. And whenever the Lord has given a word, His word has never fallen to the ground. कई बाहर से लोग कमेंट करते हैं, हम नहीं मानते, तो हमने कहा तुम्हारे लिए है कहाँ हो। Some people from outside they comment, "Oh, we don't believe." Then we said, "This is not for you." ये जिनके लिए है उनको दे रहे हैं। We are giving this word to those whom it's meant for. अब रोटी बनती है घर में तो बच्चे खाते हैं घर के अंदर के। When you cook food in the house, the children of the house eat that food. अब कोई पड़ोसी चिल्लाए, हम नहीं मानते कि तुम्हारे घर में चिकन बिरयानी बना है, तो हम कहें तुम्हारे लिए है ही नहीं। If a neighbor shouts and says, "I don't believe there is chicken biryani in your house," and we say it's not for you, मानो ना मानो, whether you believe it or not, हम तो मजे से खा रहे हैं। we are enjoying it and eating it. आमीन। तो जो परमेश्वर ने कहा 2025 तक उसने किया, What the Father said till 2025, He did. इस साल भी जो उसने कहा है वो करेगा। This year, what He has said, He will do. आमीन। Amen. सो प्रभु ने मेरे मन में डाला कि ये जो साल होगा ये एक डोमिनियन का, एक प्रभुता करने का साल होगा। The Lord put this in my heart that this year will be a year of dominion, having dominion. ये जो शब्द डोमिनियन है या प्रभुता है, ये एक इब्रानी शब्द है, रडा। This word dominion is RADAH। रडा का मतलब होता है अपने पैरों तले कर देना किसी चीज को। This word dominion is the Hebrew word rada, which means to bring under your feet, to bring something under your feet. अगर हिंदी भाषा में बोलूं तो किसी चीज को कुचल डालना, And that is to trample upon something, लताड़ देना। to destroy something under your भजन feet. संहिता 91 में वो कहता है, तू जवान सिया और अजगर को। In the Psalms it says, "You will crush the young lions and the serpent." तो कुचल डालेगा उन्हें, लताड़ देगा। You will crush them under your feet. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को See, I रौंदने का अधिकार दिया है। That's what dominion means। have given you authority to trample upon snakes and scorpions. ये है अधिकार, प्रभुता करने का अर्थ। Amen। So
So there are 7 things that God told me, and मैं 7 चीजें हल्के हल्के करके आपको ले जाऊंगा. So 7 बातें परमेश्वर ने मुझसे कही, and I will take you through them. If you wanna write it down. अगर आप लिखना चाहते हैं, आपका कॉपी पेन नहीं है, फोन तो है आपके पास, खोलो उसका नोटपैड. If you don't have a notebook and pen, make notes on your phone. और चिंता मत करो, आपका अंगूठा बहुत ट्रेंड है. And don't worry, your thumb is very trained. आजकल हमारे पाँव से ज्यादा हमारा अंगूठा चलता है. Okay, so the first point is 2026 shall be a year of great harvest. पहला पॉइंट है 2026 महान कटनी का साल है. कौन सा साल होगा? महान कटनी का साल होगा. It will be the year of a great कितने harvest. लोग विश्वास करते हैं ये बात? How many believe this? हाँ, ये तो जो है अभी आप देख रहे हो ना, This what you're looking at ये right तो now. केवल कटनी के मजदूर हैं यहाँ पे. This is just the laborers in the harvest. जो बड़ी कटनी इस देश की राजधानी में होने वाली है, The great- ये तो केवल उसके मजदूर हैं. The great harvest that we are going to have in this capital city, these are just the laborers for it. और हम भीड़ नहीं है. So we are not a crowd. हाँ, a sign of this year would be you will see many you thought are impossible will never come. You will see them giving their life to Lord Jesus Christ of Nazareth. एक चिन्ह ये होगा इस साल का कि वो लोग जो आपको लगता था ये तो असंभव है कि प्रभु को जानेगा, प्रभु में आएगा, आप देखेंगे वो अपनी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं. आप गवाही दोगे इस साल. You will testify this year. वो चाचा, वो फूफा, वो मौसा, वो पापा, वो ननद, वो दोस्त, वो मम्मी, अरे परमेश्वर कह रहा है इस साल मैं बचाने वाला हूं उन सबको. Of those relatives, those parents, those siblings, the Lord is saying He's going to save those relatives this year. Amen. कटनी नहीं, कटनी तो हर साल होती है. Not harvest, we have harvest every year. महान कटनी. This will be the year of great harvest. Amen. आप जानते हो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे कीमती क्या है? You know, in the entire creation, what is the most precious thing? कभी सोचा आपने? Have you ever thought about that? किसी से पूछोगे तो बोलेगा शायद सोना, If you ask someone, they'll probably say gold, हीरा, diamonds, पेट्रोलियम, petroleum, टाइटेनियम, titanium, जो भी है. whatever. मगर जो सबसे कीमती इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में है, जो सबसे कीमती है वो है आत्माएं. But the most precious in all of creation is souls. जिसके लिए परमेश्वर को इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ी. For which God had to give such a big price. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको कोई गिफ्ट देता है, जब कोई आपको तोहफा देता है, आपको तो फ्री में मिला, मगर देने वाले ने कीमत पूरी चुकाई उस चीज की. I told you, whenever you receive a gift, you receive it for free, but the one giving the gift paid full price for whatever they are gifting to you. आपको मुफ्त में इसलिए मिला क्योंकि कोई है प्यार करने वाला ऐसा जो उसकी कीमत चुकाकर आपको मुफ्त में दे देता है. You got it for free because there is someone who loves you so much that they pay the price for that gift and give it to you for free. पर दुकान वाले ने तो मुफ्त नहीं दिया. But the shopkeeper didn't give it for free. उसको परवाह नहीं आपकी बेटी का बर्थडे या बेटे का बर्थडे. The shopkeeper does not bother if it's your son's birthday or your daughter's कहता birthday. कीमत तो देनी पड़ेगी. He says you have to pay the price. जब आपने कीमत दिया, When you paid the price, आपको वो चीज मिली. you got it. अब जिससे आपको प्रेम है आप उसको वो तोहफा देते हैं. Now whoever you love, you give them that thing as a gift. उद्धार मुफ्त हमारे लिए है, Salvation is free for us, और परमेश्वर को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. but God had to pay a very big price for it. उसके लिए मुफ्त नहीं था. It was not free for him. वचन में लिखा है कि तुम्हारा उद्धार नाशवान सोने और चांदी से नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह के कीमती लहू से तुम लोग खरीदे गए हो. In the word it says you were not saved by destructible gold or silver, but you were bought by the precious blood of the Lord Jesus. तो अगर आत्माएं, अगर सोल्स सबसे कीमती हैं इस पूरे ब्रह्मांड में,
तो सोचो कितने ब्लेस्ड और आशीषित आप लोग हो कि परमेश्वर आपको उनकी कटनी के लिए भेज रहा है। So if souls are the most precious thing in the entire creation, then imagine how blessed you are, how privileged you are that the Lord is sending you for that harvest of those souls. आज कई लोग बहुत उपलब्धि दिखते हैं उन लोगों ने जिन्होंने बहुत पैसा कमाया। Many people see it as an achievement when they see someone who has earned a lot of money. एक व्यक्ति है मेरे ख्याल से जो स्टॉक करते रहे, क्या झुनझुन वाला हाँ किसी को पता? हाँ राकेश झुनझुनवाला। तो काफी हजारों करोड़ थे उस व्यक्ति के पास। He had many thousands. तो एक इंटरव्यू में बोले कि मैं जो ये दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, जो पैसे कमा रहा हूँ, So in an interview he said, when all the money that I'm earning day and night, मेरे मरने के बाद ये सब व्यर्थ है। he said, this is all wasted after I die. मेरा परिवार मजे करेगा, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करी, मगर जिस दिन और कुछ हफ्ते बाद उसके उनकी मृत्यु हो गई। He said, my family will enjoy the wealth that I have earned, and few weeks after that he died. 6,000 करोड़ 8,000 करोड़ एक अठन्नी भी इस दुनिया से उस दुनिया नहीं ट्रांसफर कर सकते। 6,000 crores, 8,000 crores, you cannot transfer a dime from this world to that world. ऐसा कोई क्या बोलते हैं ICF जो भी कोड होता है वो, वही ऐसा कोई स्कैन कोड नहीं, ऐसा कोई बैंक अकाउंट नहीं जो यहां से 1 रुपए भी वहां डाल सको। There is no scan code, no bank account that can transfer any money from this world into that world. अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब छोड़कर हिमालय चला जाओ। I'm not saying abandon everything and go to the Himalayas. पैसे को अपनी जगह में रखो तो सही है, पैसा जब अपनी जगह छोड़ के सर पे नाचे तो फिर खराब है। Keep money at its rightful place and that is good. But if money climbs on somebody's head and हर dances on their head, चीज की एक जगह। अब चप्पल को कोई सर पे रखे तो लोग उसे मूर्ख कहेंगे, everything has its place. If somebody puts their slippers on their क्योंकि head, चप्पल पाँव के नीचे तो बहुत अच्छी लगती है, मगर सर के ऊपर मूर्खता की निशानी है। slippers they look good under the feet, but on the head it looks like foolishness. ऐसे ही पैसा जब तक आपके अधीन है तो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होगा, अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल होगा। जिस दिन सर पे तांडव करेगा उस दिन आपको भी नाश कर देगा और बहुत लोगों को। As long as the money is under your submission, under your feet, it is in the right place. But the day it is on your head, it will destroy your life and many others. तो हर चीज की एक जगह है हमारे जीवन में, और परमेश्वर जो हमें विजडम, जो बुद्धि देता है वो ये है कि हर चीज अपनी जगह पे अच्छी है। Everything has a rightful place, and the wisdom that God gives to us, that it should be in its rightful place and it looks good there. कितने लोग जानते हैं कि यीशु के पास भी एक पर्सनल अकाउंटेंट था जो पैसा रखता था बैग में। How many know that Jesus had a personal accountant who would keep money in a bag? कई मसीह आज यीशु से ज्यादा धार्मिक होंगे, छी पैसा छी। There are यीशु ने ऐसा नहीं कहा। some Christians who are more religious than Jesus. They say, oh no, we don't want money, money is bad. पर वो जानता था कि ये केवल एक प्रबंध के लिए Jesus knew this was only a provision. एक वस्तु है, It's a उससे thing, ज्यादा उससे कम कुछ भी नहीं। nothing more, nothing less. सो वो जो व्यक्ति था जिस दिन मृत्यु हुई, 1 रुपए वहां नहीं ले जा सकता। मगर सोचो वो आप लोग, अगर आपने आत्मा जीती तो फिर निर्धन होकर नहीं उसके राज्य में प्रवेश कर रहे हुए, बहुत धनी होकर उसके राज्य में प्रवेश करोगे। क्योंकि वो जो कमाया, जो आत्माएं कमाई, वो केवल यहां ही नहीं उसके राज्य में वहां भी आपके साथ साथ जाएंगी। A man with physical wealth will not take it into that world, but when you save souls, you're not just, when you are entering into the kingdom, you are taking many souls from this world into that world. मैंने आपको दानियल की पुस्तक से बात बताई थी कि वचन में लिखा है जो आत्माएं बचाता है वो क्या है? I told you from the book of Daniel, he who saves souls is, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ तो है। some people are saying something. जो आत्माएं बचाता है वो क्या है? बुद्धिमान है, बाइबल कहती है। He who saves souls is wise, the Bible says. वो बुद्धिमान नहीं जिसको दुनिया बुद्धिमान कहती है, वो बुद्धिमान जिसको परमेश्वर जब ऊपर से देखता है तो कहता है ये जो आत्माएं बचाता है ये बुद्धिमान है मेरी नजरों में। Not wise as the world calls wise, but wise whom God calls wise. When God looks at that life, he says this is a wise man. सोचो आप समुद्र के तट पे हो, बीच में हो, Imagine you're at the beach. और जिंदगी भर वहां पे आपने एक बहुत बढ़िया एक
रेत का महल बनाया And lifelong you built a very nice sand castle और सबको दिखाते हो, देखो and you showed off to everybody. क्या महल मैंने बनाया है। Look at this great palace. That मेरे महल जैसा किसी का महल नहीं। Nobody else has a palace like mine. आप घमंड करते हो, You're so proud about it. इंस्टाग्राम में भी पोस्ट कर दिया You also posted बहुत it सारे on like भी आ Instagram. गए। You got many likes. और फिर एक लहर आई And then a wave came और ले गई उसको। and took it with the wave. पौलुस कहता है कि अगर हमारी आशा मसीह में केवल इस जीवन की है तो हम में से कोई ज्यादा, हमसे ज्यादा कोई अभागा है नहीं। Paul says if all our hope in Christ is in this life, then we are the most unfortunate people. Pitiable, that's Pitiable. what the English Bible says. सोचो अगर जिंदगी भर मसीह को जाना, उसकी आत्मा से भर गए, मगर जिंदगी भर उसके पास केवल एक बड़ी गाड़ी, बड़ी घर, ज्यादा पैसों के लिए आए, If we तो knew, फिर असली मकसद पूरा नहीं किया। if we knew